shying away. And wide. It was always drifting wide. I think if Turbish comes back and Mala's at the striker's end, then we might see some fireworks. Just the single, there's a man down there. Long on, long off. There's one at deep cover. And a couple on the leg side. In fact, someone just coming into the ring. Still enough cover though. But not if you hit it like that. One bounce, 4. Yeah, just a little bit of width, just a hint of width, which allows the left-hander Mala to free his arms. There's no sweeper on that offside boundary. Gee, I tell you what, he is a clean striker. It's coming off the middle. Pitch playing a little truer than it did yesterday. Oh dear, that's going to be 4 wides. I'm not going to catch that one. Yeah, I'm not sure we're gonna really see how the pitch is playing until Nepal have a bowl, because it's just gentle little medium paces here. And they are disappearing at a rate of approaching 13 and over now. And it's been a long over. And that one's going to go all the way into the side screen. Well, keep your eyes on the record books. He is on the charge. Yep, he's got 10 balls to do it in. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपकी केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। And with the same result, just over the boundary. Is it? No. The umpire's signaling 4. I think there may again be yeah, he's just crossed his arms and he's waiting. It's right in front of the officials. So I think that they may just ask to see this again. Well, that crossing of the arms is basically the indication of, yeah, I mean, change previous decision. And so he did cross his arms, and now he signals, there it is, change of previous decision, 6. Boundary 6 for Nepal. It's a long way over.
Well, it certainly was the boundary. It certainly was a 6, and this should be another one, a 4. That's a wonderful shot. Yeah, well, we spoke about records. Well, we're going to see one here, an Asian Games record, that's for sure, because they are racing towards that total. 150 comes up. So it's laced through extra cover. Sweep is very square. It's been just under an hour of pain for Mongolia. Started off quite tight, but you've got to be able to continue. That just sat up beautifully to be cut away. Top edge. It's safe behind the keeper. Yeah, they get a single, but the problem is it brings Marla back on strike. Good news, bad news. Yeah. Yeah, the other thing is, so it's an hour. You know, there's a bit of grace here in the Asian Games, but when playing in other tournaments, your over 8 gets scrutinized, and Nepal are going to bowl 12 to the hour, which there would be a penalty. Yeah, well, I think it's a little longer, 75 minutes for the women's innings and 90 for the men's, so a bit longer, but they've already going to have to bowl another 3 overs. Oh, now in the air. Oh, and spilt. And they'll come back for a couple. Well, we've had a spectacular catch in the deep this time. Not. Oh, and overthrows. Oh, dear. Wheels are falling off a little bit. It was, I think that was Munkbat who fancied it. Yeah, he's come storming in off that boundary again. Oh, no. It was actually Namstraight. Is it 90 minutes or is it 85 minutes for the men? As I read it, yeah. I will check. It's a long time to be given 90 minutes. 15 more minutes than the woman. Oh. Neatly played. Just a ball remaining of the 12th. And it is Marla, who is on 79 from, just 26 deliveries. Is it 7 6s and 5 4s? Just, if you're in the stadium, keep your eyes peeled. Don't go looking at your phone at the moment. He's been outstanding, hasn't he? I don't think he's got the record in his sights, you know. I mean, in other words, I don't think he's looking at it because, you know, it's just not aimless swinging. He's happy to knock away 1, and he would have just got 2 of the previous time he was on strike, but he ended up getting 3 because of a miss. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। Keeper's done he's let a few buys go, but generally he's been good. Took a catch. And, it's 160 for 2 off of 12 overs. Almost 100 partnership. Big appeal. Well, yeah, he only has to hit 3 out the ground, and he's got the record. You know, I mean, he's appeal for LBW. Just a little bit high. Not the worst shot. Well, we had one, didn't we, earlier on that was on the boots, and that looked actually worth, if you could review it, you'd probably review it. Not available here at the Asian Games. We do have replays for run-outs and stumpings. Oh. Get another one. Well, that's a collector's item. Just a tap and run. Get 2.
You do get to, yeah. So the run rate just creeping over 13. Let's see. Morgan will know that he's got to get this absolutely right. Have to bowl it again. Another wide. That's wide number 15. And he's gone big again. Sure. There is a fielder there who will watch it. I think that's exited the ground. There's a volunteer who's just gone to find that. Definitely a 6. Yeah. Being thrown back from the road beyond. And it's on. It's on. Here we go. Every time he hits one out the ground, he just threatens it, doesn't it? But you think about it, if he had continued with his power hitting, he could have obliterated the record. Just want to put it in your pocket and enjoy for a while. Yeah, that's cleared the front leg, made some room, and yeah, it was high. It was straight over the keeper, the fielder rather. Sumia watching it over his head. It's gone again. Fielder is interested. Oh, and we'll run past it. It's 4. Boundary 4 for Nepal. 10 off 2. He's put the afterburners on. Well, he won't touch AB de Villiers as fast as ODI 100, but we're in a T20 match. We're in the Asian Games, so this will be the a record. A little bit of backspin defeating the fielder. Here we go again. Not this time. That should just be a single. And keep the strike. He'll keep the strike here and give himself an opportunity. सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ स्वीट जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी सॉल्टी और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चले जाओ स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए बार्ले क्रैक जैक। है अपनी कहानी झलने दे बस दिल की मनमानी The opener has been brought back on. Oh no. Have a word, HD. I can't. I mean, surely you're just swinging for it, yeah. Unless he's going to take it. Oh, probably too frightened to break Rohit Sharma's record. There'll be some strict social media correspondence. Yeah. Dear sir. Something along those lines. I'll go for a quick single. It's nice to see from Nepal, actually. We've got a lot of big hitting, but we've also got a little bit of touch on display and a bit of a puff of dust off the surface as well. Right. Hard hats on. Let's see what he can do. There it is. There you go. Over the boundary. And that is a marvellous, marvellous achievement from Mala. They know it. Yep, they certainly do. There was an indication from the non-striker. Yeah, just trying to find out from the dugout, is that it? Has he got it? Has he got it? There was some thumbs up. And so not only is it a very well-played 100, but it is now officially the fastest T20 International 100. Record breaker, Kushal Mala, take a bow. And he's gone again, and this one's going to go out the ground into the concession stores. Well, I hope you were paying attention down there by the shopping area. Well, I'm telling you what, this innings will capture the imagination of the locals in attendance.
because there's groans when every time the ball now disappears out the ground. This is what T20 cricket is all about. Ball has been retrieved. And the third official with the spare balls is trotting back. Well, that third official with spare balls will be very, very busy throughout this competition. What an amazing achievement. 107 off 34 at a strike rate of over 300. Well, a little bit of running repairs needed, I think, to the seam probably. The ball, of course, sometimes the umpire will always have a little pair of scissors. It's not so badly damaged that they can't carry on. It's a collector's item, a swing and a miss. I wonder what his mindset will be now. 189 for 2. Oh, I mean, he's probably just going to keep swinging here, Marla, but I'd be tempted to actually give one of my teammates a hit, to be honest. I think he's just going to give it a go. If a wicket goes, the wicket goes. Just a little push into the leg side. Chalo, chalo, chalo. Take a break. Chalo wahan. Har bite mein real milk hai jahan. Chalo, chalo, chalo. Let's all go for an amul ice cream. Chalo, chalo, chalo. Man kiya kulfi khana hai. Dil ko jo behlana hai. Let's all go for an amul ice cream. Chocolate, rajbol, dry fruits, mango. Go, go, go. Let's all go for an amul ice cream. Real milk, real ice cream. From, in particular, Marla. Bear in mind, Padel is 24 off 13. It's a wide ball. And the thing is, how do you feel running into him? Tim Masurk got the treatment. He's gone for 40 in 2 overs. That's a good ball, though. Into the block hole, dug out by Marla. Advances to 109. The highest T20 team score is 278 for 3, which was Afghanistan against Ireland. They can hit sixes for fun. The Afghans, I tell you what, for fun. It might be a no ball, but it's certainly a 6. Boundary 6 for Nepal. Well, it's a run fest here. Yeah, I think the umpires have done well here by not putting up their hand for a no ball. Please avoid the ball. It's probably just falling underneath the hip, but I think there needs to be a little bit of common sense. This score is enormous. It's highly unlikely. No, we don't like to say it so early in the piece, but highly unlikely that Mongolia will get even close to it. It's gone again. It's another maximum, almost identical. Well, this time Powdell's joining the party. They are getting pummeled now, Mongolia. It's easy on the eye when the ball is disappearing. Not if you're Mongolian, of course, and there's only 11 in the squad. So no changing of personnel for the next match. This one, now, fielder there. Oh, puts it down in the deep. Obviously, we saw 2 lovely catches for Mongolia's wickets, but now we've seen a couple put down. Again, it's just the positioning. The ball sort of slices off the bat, so it just drifts to the left hand of long off. Samir it was. Didn't get himself in position at all, really. Just parried it away. And a miss. Haven't seen that often against Kishore Mallat. 200 is up, by the way. Sorry. It's
going so fast, sometimes you look up and think, oh, okay, another 100 on the board. Mark 109, and he's looking for some more here. Another good ball, just unable to collect it off his own bowling to Masuk, so it'll be a single. इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडिया नंबर 1 सीमेंट कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Just drifting into the block hole and dugout. And Surin, who is bowling from this end. Well, he's certainly one we'll watch as the competition goes on. Kushal Mala. Oh, Nepal, what a fillip for them. They'll fancy a scalp of a big team, won't they, if they can play like this. Dug that one out again. Better over from Jaman Surin. You know, there's a couple of things that this type of performance can do. It can give you the confidence required, or it can also get you a little bit overconfident because your opposition is going to change. It's it again. There are 2 players there, but it dissects them. The run was from Lutbaya, but he was never going to make it into the other tunnel. We've got 2 tunnels here. Volunteers doing the fielding for us. And a quick shout out to the volunteers who have looked after us very well. Sure. And what about those who've looked after the ground when we had those 2-3 days of rain? On, off came the covers, on, off, and there were, 20 or 30 just bringing the covers on. Yeah, tricky game, cricket. I mean, it's only in its infancy stage again. We talk about in the various games around the world, whether it be Asian games or Olympic games. I mean, it's been in the Commonwealth Games, but looking to become a fixture in games events. And that's a full toss. Someone there, but it's too big. Another 6. Boundary 6 for Nepal. Adel is not just nurdling it for a single and letting Mala get on with it. He's going at a run rate of over almost 250, the strike rate rather. If he starts to get a move on, it could be the shortest record of all time. He's gone again. It's a top edge, but goodness me, that has motored. I think that might have gone all the way. Just checking. It's the wrong end, isn't it, for the umpire? I think you're right. Those square leg has signalled at 6, and now the umpire does. Yeah, just over. White ball, white. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। 16 ओवर के बाद नेपाल ने 225 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। कप्तान रोहित पौडेल 50 पर खेल रहे हैं। एक और शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक और चौका आता हुआ। मंगोलिया की फील्डिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा निराश किया है, और ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है बड़ी टीमों के साथ खेलने की या क्रिकेट खेलने की, चूंकि बेसिक
गलतियां जो हैं वो बहुत खल रही हैं इस समय। मिस जज किया टिप्पा खाने के बाद, थोड़ी सी जैसा कि हिलती है गेंद और वहां पर चौका, एक और वाइड। बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन आज दिए हैं मंगोलिया के गेंदबाजों ने, और तारीफ करनी पड़ेगी कुशल माला और रोहित पौडेल की। दोनों ने क्या पारी खेली, और कुशल माला 120 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ 44 गेंदों का सामना किया है। एक और बड़ा शॉट, क्या इस बार कैच आउट होंगे? जी नहीं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और दंदनाता हुआ शानदार छक्का कुशल माला के बल्ले से। स्कोर कहां तक जाएगा? 270, 280 या फिर 300 का भी टारगेट इनके जहन में होगा। कुशल माला ने तो पहली गेंद से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। रोहित पौडेल ने दूसरी तरफ थोड़ा सा समय लिया था, और इस बार छोटी गेंद थी, ठीक ढंग से बल्ले पर आई नहीं, फिर भी 2 रन तो कम से कम मिल ही जाने चाहिए। इसके बाद 19 गेंद का खेल बाकी है, 238 रन बन गए हैं। जरूर कोशिश करेंगे कि 280 तो पार करें, और यह भी संभव है कि 300 के लक्ष्य तक भी पहुंच सकती है नेपाल की टीम। एक बार फिर करारा प्रहार और एक और छक्का। मन माफिक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां शॉट मारना चाह रहे हैं वहां खेल रहे हैं। और कुशल माला और रोहित पौडेल की जोड़ी टिक गई तो निश्चित तौर पर 300 के आसपास लेकर चले जाएंगे नेपाल को। नेपाल के लिए तो ये बहुत अच्छी मैच प्रैक्टिस हो गई। जब बड़ी टीमों के साथ इनके मुकाबले होंगे, अगर नॉकआउट तक जाते हैं तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमें हैं इस ग्रुप में। अफगानिस्तान से भी कड़ी चुनौती मिल सकती है। खिलाड़ी इस बार पीछे मौजूद, और एक और, क्या चौका बच गया। ऐसा लगा था कि शायद ये भी चौका चला जाएगा। थोड़ी सी हड़बड़ाहट और उस पर दबाव, जो बड़ा स्कोर बन गया है तो थोड़ा दबाव भी आ गया है फील्डर्स पर। बहुत ज्यादा जब आप मिसफील्ड करते हैं तो आपके मन में एक हिचक सी हो जाती है कि ये गेंद रुकेगी या नहीं रुकेगी। यहाँ बाउंड्री चेक किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार रोकने में सफलता मिली है। उनके दाएं पैर की स्थिति भी देखनी होगी, क्या वो रोप से टच था? जी नहीं, चौका बचा लिया है इस बार। थैंक यू। 245 रन, एक गेंद बाकी और इसके बाद पूरे 3 ओवर। चलिए, ये बीमर है, वार्निंग भी दी जाएगी। कमर के ऊपर रोहित पौडेल इसे फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, डगलस मरीलियर शॉट, लेकिन कनेक्शन नहीं आया। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी दुविधा है। लेग स्टंप पे जो मार्क है उस मार्क के भी बाहर। 22 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से। इस बार कनेक्शन सही आया नहीं है, क्योंकि फ्री हिट है, आउट होंगे नहीं। फ्री हिट पे विकेट जाएगा नहीं। 248 पर 217 के बाद। पता है, मम्मी आ रही है और दीदी भी महीने भर रहेगी। ये है नकली स्माइल, और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर,
इस बार स्लॉट में गेंद थी, उठाकर खेला है फील्डर, नीचे जरूर है लेकिन कैच छूटा है। वाइड नो बॉल और कैच छूटने के आंकड़े पर अगर मैच के बाद नजर डालेंगे तो सभी डबल डिजिट में मिलेंगे आपको। इस बार थोड़ा सा कदमों का प्रयोग करके आए थे, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आए जरूर थे नीचे लेकिन जजमेंट सही नहीं। कीपर के ऊपर से गेंद निकली है, टॉपेज लगा था। बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ नेपाल की टीम। कप्तान रोहित पौडेल 53 पर, कुशलमाला 135 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर्सनल माइलस्टोन की तरफ भी देख रहे होंगे। टी20 क्रिकेट में 150 का आंकड़ा बहुत विजिबल है। बॉलर के ऊपर से कनेक्शन आया नहीं है सही, और एक और मिसफील्ड, 1 रन होता। क्या 2 रन के लिए जाएंगे? जी नहीं। 16 गेंद अब भी बाकी है इस पारी में। फुलर लेंथ की गेंद थी और मंगोलिया के लिए बहुत कुछ सीखने का अवसर है। जब इस मुकाबले के बाद इसके रीप्ले को देखेंगे तब समझ आएगा कि किन एरियाज में मेहनत की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए। रोहित पौडेल भी कह रहे हैं कि 300 का आंकड़ा अब हमारी आंखों के सामने है और 300 के लक्ष्य तक पहुंचना इस उनके लिए अभ्यास मैच सरीखा। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर हाफ वॉली थी और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत शॉट खेला। इस ओवर में अब तक 10 रन आए हैं। दो गेंद बाकी हैं। मिडिल और लेग स्टंप। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, डायरेक्ट हिट लगता तो शायद रोहित पौडेल मुश्किल में आ सकते थे। कुशलमाला ने स्टार्ट ही नहीं लिया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इस मुकाबले में बहुत समय बाद डॉट गेंद देखने को मिली है। अच्छी गेंद, इस बार रन के लिए गए हैं। विकेट के सामने हाथ लेकर आ गए विकेट कीपर, नहीं तो रन आउट पक्का था। 18 ओवर की समाप्ति हो गई है। नेपाल 259 पर 2। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नो फ्रूट फ्रॉम प्लेन। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। 12 गेंदें बाकी हैं और इस बार विकेट जानी चाहिए। जी हां, विकेट कीपर ने कोई रिस्क नहीं लिया। शॉर्ट पॉइंट लेग पर जो खिलाड़ी मौजूद था उनके पास दस्ताने नहीं थे और हमने देखा है कि कितने ज्यादा आज कैचेस छूटे हैं। तो रोहित पौडेल आउट होकर जा रहे हैं और नेपाल को लगने वाला ये तीसरा झटका। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, आमूल
में ही स्वाद है अमूल, the taste of India। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। रोहित पौडेल जो कप्तान थे नेपाल के, वो आउट होकर गए हैं। और ये देखिए बहुत ज्यादा बाहर। आज शुरू से यही कहानी रही है, मंगोलियन गेंदबाजों की बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और अतिरिक्त रनों की संख्या बहुत ज्यादा है। 11 गेंदें बाकी हैं और आयरी आए हैं। छोटी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, पहले लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल और अब ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल। दोनों ही तरफ वाइड गेंदें हो रही हैं। पर गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार छक्का। पर गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार छक्का। कि आंकड़ा भी करीब नजर आ रहा। छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए और बहुत ही पावरफुल पंच मिड विकेट के ऊपर से। कौशलमाला अब दूसरे छोर से इस आतिशबाजी का नजारा ले रहे हैं। 14 चौके और 19 छक्के लग चुके हैं। एक और छोटी गेंद और एक और छक्का। वही परिणाम, वही एरिया। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया ये शॉट। 2 गेंदों पर 12 रन बना दिए हैं। स्ट्राइक रेट 600 का है इस समय, 273। बॉलिंग क्रीज के बहुत पीछे से गेंदबाजी कर रहे हैं। जबरदस्त लय में नेपाल की टीम और मंगोलिया के जो अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण है उसको एक्सपोज कर दिया है। खराब फील्डिंग, कैच ड्रॉप। 3 बॉल पर 3 छक्का, हैट्रिक छक्का चढ़ दिया है एरी ने यहां पर और 300 के लक्ष्य को बिल्कुल साकार करने की तरफ आगे बढ़ रही है ये नेपाल की टीम। इससे बढ़िया स्ट्राइक रेट आपका हो नहीं सकता है क्रिकेट के किसी फॉर्मेट में। और ये गेंद लगभग इन हरी भरी खूबसूरत वादियों में खोसी गई है। क्या ये छक्का चौथा होने वाला है? जी हाँ, क्या गजब की बल्लेबाजी। और वही स्लॉट पर गेंद भी डाल रहे हैं। गेंद की लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी लाइन पर लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर और कोई परेशानी नहीं हो रही है एरी को। 4 गेंदों पर 4 छक्का जड़ दिया है। ड्रेसिंग रूम में बहुत समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जब बारी आई है तो टूट पड़े हैं मंगोलियन गेंदबाजों पर। और ये लगातार 5वां छक्का। 1 ओवर में 5 गेंदों पर 5 छक्का जड़ दिया है एरी ने। 19 ओवर की समाप्ति हो गई है। नेपाल 291 पर 3। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है। लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 275-80 का टारगेट होगा, लेकिन अब 310 भी मुमकिन लग रहा है। और कुशल माला ने कहा कि मुझे नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहकर देखने में ही मजा आ रहा है। 1 रन लेकर अपना छोर बदला और एरी को जिम्मेदारी दे दी है। 5 गेंदों पर 30 रन की पारी, 5 गेंद 5 छक्के और 5 के 5 छक्के स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गए हैं। अपनी पारी की शुरुआती 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर इन्होंने एक खास तरह का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। फुल टॉस गेंद थी, एक और छक्का। 6 गेंदों पर 6 छक्का जड़ दिया है अपनी पारी में। बेहतरीन। इसके साथ ही 300 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। 300 पर पहुंच गई है नेपाल की टीम। और ये छक्का भी ऑन साइड पर स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में से रनों की आतिशबाजी यहां पर नेपाल ने पेश की है। क्या इस बार एक और छक्का है? गेंद काफी हवा में गई है, शायद डिस्टेंस नहीं मिलेगा, कैच छूटा है। तो छक्कों का जो सिलसिला शुरू किया था पहली गेंद से, वो टूट गया है और चेहरे पर मुस्कान। स्लॉट में गेंद जरूर थी, लेकिन सर काफी ऊपर चला गया था और जब शॉट खेलते समय आपका सर ऊपर चला जाए आकाश की तरफ, तब जो डिस्टेंस है वो मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 रन ले लिए हैं, स्ट्राइक पर हैं और इस बार एक और छक्का जड़ा है। बीच में एक गेंद छक्के के लिए नहीं जा पाई, लेकिन जितनी भी गेंदें खेली हैं उसको छोड़कर सबको बाउंड्री के बाहर भेजा है और सभी ऑन साइड पर ही भेजा है। बेहतरीन। इस बार एक और छक्का, इस बार पॉइंट बाउंड्री के बाहर छक्का गया है। और स्कोरर के लिए भी काफी मुश्किल हो गई है जिस गति से छक्के आ रहे हैं। इस बार अपना इरादा बदला, छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। फुल टॉस बॉल, इस बार डिस्टेंस पर गेंद गई नहीं है, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और 2 रन पूरा भी कर लेंगे। क्या कमाल की पारी खेली है यहां पर एरी ने, आकर धुआंधार आक्रामक ताबड़तोड़। पापा साहब, बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। चलो चलो चलो, टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो चलो चलो, लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो चलो चलो, मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। ओके बाय। ओके बाय। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। ये बरेली वाली चाची, ये मंजली बुआ,
और ये पन्नू मौसी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नेपाल के बल्लेबाजों ने रंग जमाया है। 314 रन बनाए हैं निर्धारित 20 ओवर में। कुशल माला की बात करें, जिन्होंने बेहतरीन शतक जड़ा, कप्तान रोहित कुमार पौडेल का अर्धशतक। लेकिन जिस अर्धशतक की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है एरी की। आकर शुरुआत के 6 गेंदों पे 6 छक्के, उसके बाद 2 और छक्के, संभवतः सबसे तेज अर्धशतक होगा। ज्यादातर गेंद स्लॉट में गई और कुशल माला ने उन सभी गेंदों को डिस्पैच किया। लेग स्टंप के बाहर छोटी गेंद, डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से ज्यादातर शॉट देखने को मिले। ये रोहित कुमार पौडेल कप्तान का विकेट था। और उसके बाद जो प्रहार किया है एरी ने, 52 रन बनाए हैं, महज 10 गेंदों का सामना किया है 520 के स्ट्राइक रेट से। कुशल माला 137 पर नाबाद रहे, 50 गेंदों का सामना किया उन्होंने। रोहित कुमार पौडेल 61 रन की पारी खेली, धूतल के 19 रन और शेख के 16। 29 एक्स्ट्रा पर भी नजर रखिए, 29 रन अतिरिक्त गए हैं 20 ओवर के मुकाबले में। और ये है गेंदबाजी का लेखा जोखा। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 ओवर में 55 रन हैं। तो 315 रन चाहिए मंगोलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 19th Asian Games 2022 को स्पॉन्सर्ड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। पार्ले जी माने जीनियस, अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर, टीम इंडिया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट, पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। Welcome back. You're watching a special edition of 19th Asian Games 2022. I'm Shikha Sachdeva. So, abhi humne dekha Nepal and Mongolia ka बीच में match. When we talk about, amidst of 4s and 6s there, Mongolia though won the toss, chose to field first, but Nepalese batsmen were everywhere. 314 on the board by Nepal batsmen. Let's see, will Mongolia be able to put down Nepalese batsmen or not? बहुत मुश्किल है, लेकिन क्यों ना हम इसके बारे में चर्चा के लिए बात कर लेते हैं राकेश राव से। राकेश, we had a fun time watching those huge 6s and 4s, but nevertheless, Mongolia is giving it a try. And of course, it was a team which was ill prepared. They're very new to this thing. I mean, even in Asia, they are the 22nd nation to get the ICC nod. They just joined the fray just a few years back. And they, overall, when you look at Mongolia, you know that they had no clue as to where to bowl, to actually bring in the variations. They had no clue. Fielding. Hello and welcome you to the highlights between Nepal and USA, where USA were all out for 35. This is the lowest ODI score in history, where Nepal made an number of, wides which they bowled. So there's so many things. There are, such kind of, outings will only help Mongolia if they seriously want to pursue this game. Yeah, absolutely. But nevertheless, very new to the game.
Yeah, they're absolutely new to the game. Still they were Can't giving blame a try. them at all. And yes. this is how the batting card looks like by the Nepalese batsmen, where in 137 on the board for just 50 deliveries by Kushalmala. Not out, he was everywhere. And then Airy, for just 10 deliveries, they're adding on 52 runs with a strike rate of 520, and starting with Bootal and Sheikh adding on 19 and 16 respectively. So 314 on the board for the loss of 3 wickets by Nepal batsmen. That is how the batting card looks like after first innings. So not at all a surprise. This I'm is not what you surprised. already predicted of about course, the match. Of course, I didn't expect 300 on the board in a T20 game. But yes, overall, because see, Mongolia is not known for its cricket at all. Let's face it. It's like even Nepal is new to the fray. And against the big teams, even they will face the same kind of treatment. But then that is sport for you. You got to get stronger. You can't blame anybody for being weaker, or can't blame the Nepalese because you only play the opponent which you get. So they made the most of the opportunity. They got these big runs, 10 balls, 52 on the board, which is not something which you're going to see very often. But as long as such teams are there who are trying to break in, and we all know that ICC gave recognition to Mongolia and another country from Asia, another nation from the continent, which was Tajikistan, I think. They were nation number 22 and 23 from Asia. So there are a whole lot of things that happen. But overall, when you look at the kind of fray which we got, it was like a no contest. It was like a heavyweight against a lightweight. So what do you expect? One team had to get outpunched. So we saw just that. Absolutely. So in the year of cricket, probably when we have the World Cup 2023, the biggest event, and we just had Asia Cup, we saw India versus Nepal as well. So probably the equation was the same as that was India versus Nepal, and now Nepal versus Mongolia, wherein we can say that, as rightly mentioned by Rakesh as well, we never expected 300 on the board, but it's 315 from Nepal's side. Rakesh. Yeah, for me, these runs will always go into the record books if you say that it was an international. Of course, numbers are numbers, so it's okay. I mean, tomorrow if another team plays against Nepal, they will be looking at 315. I mean, because these are all new teams, and of course, if you just go back and see how we approached our T20, or even, the 60 over game. If you just go back to the 1975 World Cup, our first World Cup, first match, we scored 30. We scored a very low total, and Sunil Gavaskar played for 60 overs and scored 36 not out. So these are all the numbers for any team getting into a new area, which is a new domain. It'll be tough. A new area, a new domain, and probably a bowling card, which we barely have a vision with the economy rate going up high. And when we see the runs which are given by the bowlers, it almost 10 times. So, but nevertheless, new to the game, new to the concept, but they're giving a try, standing up against a team like Nepal. And slowly, gradually, you never know, with the years to come and many more Asian games, they might come up. Yeah, it is like if you put the Nepalese wrestlers against the Mongolians, you'll have the same result the other way around. I mean, the Mongolians will just make sure that no Nepalese ever gets close to them, because Mongolians are so good in wrestling. So, every country has its strength. So what we are seeing is that, there's no harm in losing, and it won't hurt the Mongolians so much because they're so new, they're so raw, and they have a long way to go. So, absolutely. So this is what the sports are all about. When you get not only to perform, but to learn the game as well. So before we wind up, let's quickly look at how the medal tally looks like for the 19th edition of the Asian Games 2022, where the host nation, China, is right there at the top with 99 medals in their medal kitty, 56 gold, 30 silver, and 19 bronze. Rakesh nodding his head because that was not expected, because the gap between the first and the second is almost of a double. You don't go anywhere. Stay tuned. Hello and welcome you to the highlights between Nepal and USA, where
and welcome you to the... Hello and welcome you to the highlights between... It's a different pace altogether, isn't it? Yeah, you'd probably be around the 130 kilometers an hour, somewhere around there. Keeper standing a fair distance back. He's also just trying to find out the pace and the bounce that the pitch has, and then you'll have a better understanding of where he needs to be and where his slip cordon needs to be. But we don't often see this type of field. Two slips, two gullies in the T20 International. Playing a miss, that's why they're all in the game. Just the two out. Yeah, and Fine again, leg, third man. I mean, Naran Bhatar would not have seen anything of this sort of pace. He would have played against all his bowlers in the build-up to this Asian Games. And we're looking at something that's twice the speed. And he is playing, perhaps as a result of that. Well, they've got to run a wide. He's fencing at the ball. There's really only three fielders in front of the bat. One in the covers, a short cover. There is a long off and either a very short mid-on. Well, I suppose you could say that's mid-wicket as well. He's short as well, saving the single. And they take a run off the bat. Well done to Naran Bhatar. Well, that's the one advantage that there is when there's pace on the ball, is you don't have to try and hit it too hard. Just try and time it. Mongolia's women, remember, in their two games, 15 all out, 21 for 5 they were, 21 all out. So a lot's been made of that, and the men, a bit of pride, want to at least get a half-decent score, but it's going to be difficult. Oh, too good. Yeah, for them, the challenge will be the entire Nepalese bowling attack. Obviously, the speed is different, but when the spin comes on, I think of Sandeep Lamachani. I mean, he's been problematic for some of the best batters in the world, and they would not have seen. We saw they had a full seam attack, Mongolia. So, if you can last an over, you've had an education. Absolutely. That's a good length. They're interested, not a huge appeal. 2 for no wicket. No, he's given him out. He has given him out, LBW. It was a late decision. It was full, and we have our first wicket. And he's not happy with himself, is Turbish. Second. बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट। नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो, किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। क्यों है? उतने टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Let's see if Otkan Bayal can have a better time of it at this end. He's nippy. Oh, again, looked to play it forward and couldn't get even an edge. So there has been a wicket in this first over. That massive target even further away at the moment. Just the 2 runs from it. Oh, it wasn't far away. 2 for 1 after the first over.
Yeah, and again, these top quality bowlers are taught to bowl the ball just in and around off stump, just outside off stump. So sometimes it's difficult for them when they want to bowl straight. They struggle to bowl straight. Bowl in that lovely channel. Well, you can see right on fast, leader of the attack. Can bat a bit as well, actually. I was reading that these two quicks can ease the reliance on spin, but at the moment they may well clear up half the Mongolian batters before the spinners come on. We'll see. It is pouched on the bounce at first slip. Just finds the outside edge. Lovely length, a little bit of... Well, it would have been bowled if he hadn't got something on it. Backing away, not fancying the pace. Yeah, it's understandable. Like I said a little bit earlier, they've never played against something of this sort of pace. Never. Good leave. Yeah, I think it's more a question of survival here. Well, Naran Batar is sort of just standing, and if it's not on the stumps, he's just doesn't look as though he's going to try and play it. No. Okunbayo looks very comfortable at the non-striker's end. I would be too. I wouldn't be backing up very far, except on the sixth delivery. Goodness me. It is a golfing class, and this is a masterclass from Casey Karen. Yeah. And the whole slip coordinator saying, hold it across the seam and just get it straight. Hold it at the stumps. And then inevitably what happens? The batter gets a bat on it. Again, fishing, trying to play the shot. Yeah, you mentioned that he's all-rounder really, Karan. The strike rate of over 150. And we didn't see him today, so Nepal got over 3, and that's with batters who were striking it at about 120 in their careers. This fella's at 150, so you can only begin to imagine. So they've got plenty of power in their batting. So far, no runs. Certainly not a lot of contact with the ball either. I think there was a little fine edge on that, but again, just in front of the keeper, Mohammed Sheikh, who will be disappointed with 16. Nattering to himself. No, Batar. One more ball. I'm not running. I'm staying here. I'd be tempted to put another slip in there. Well, you've got a lot behind. 2 slips, gully, point. He did well. That one was a well-directed ball into the block hole. Well. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। Amul Light, the only thing it's rich in is taste. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। Kent RO प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Just keep all their wickets intact for the first 5 overs, but then once the first one went down, it was a procession. No. Oh. Beauty. No, free hit. No ball. Well, this will be interesting to see what Okunbayo can do. Got some leg work in there as well. Got a good forward press. Took a couple of neat catches.
Well, that's a big one. It is a big one. A couple of neat catches as the wicket keeper. He's a long way back, isn't he? The Nepali wicket keeper. They are certainly putting some pace into this match. Shot. Like you say, I think he can hold his head up high. There's only one pilot I seem to remember going for 4. It flew away. But a couple of good catches. It'll be fascinating to see what he can do here. Well, he's made decent contact there with the free hit. Well, the required rate, 17. Oh, that'll be 4. Oh, I think it's 4 wides. It's a dead ball if it hasn't hit his foot. Has it hit his foot? No. Leg buys. How's that leg buys? Isn't offered a shot. It might be interesting to see this one again. There you go. That should just be dead ball. You don't offer a shot. You can't get leg buys unless you take evasive action. If that's considered evasive action, well, then it is leg buys. But Leg buy, boundary 4. I'll take it. Heady heights of 7 for 1. This time better directed. I don't think the seamers will bowl. Well, I don't think the 2 opening bowlers will bowl their full quota, up front. First extra 29 in the Mongolian innings. Rehearsing what he'd like to do. There's a massive gap in the offside. It's a question of making contact. And he does, but it goes straight to a shortish mid-off. Saying I don't think the 2 opening bowlers will bowl their full quota of overs up front. They may be required at the back end, but I think captains are thinking about the competition. They think about injuries. They think, well, you've had 12 deliveries. It's a nice little run out today in the heat. You'll have another run out tomorrow. Maybe the next day. Nepal playing next couple of days again. Well, the strategy is different for both teams. Obviously, Nepal contenders, Mongolia just wanting to get as much experience as possible. That's wide. We're searching for the stumps, and that's why he's bowled the odd wide down the leg side. Normally, Cammy would just be running in trying to hit that imaginary 4th stump, bowling into that nice channel, bringing that slip cordon into the equation. But here he's striving to bowl straight at the stumps, and in doing that, just pushes the ball down the leg side for another wide. Extravagant swing and a miss. Looking on that leg side, there is no protection on the boundary. Either side, there are 2 men behind. Like you say, possibly 2 overs and off, and he would very much like to get himself another wicket here. Oh, well, there you go. Got the swing, freed the arms. That is going to go just inside the boundary, but 2 runs for Otkan Bayar. That was a nice shot. Got it away. That'll give him immense confidence. 10 for 1. इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट Surname on their shirts. Well, on the Asian Games information system, he is down as KCK, which kind of has a ring to it. Oh,
That's a great ball. Goodness me. Too much pace. Didn't really pitch. But Karen has a wicket. Number 7 out. And और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे रहता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Bat at number 11, whereas your bigger teams, the batting lineup is put in a swing batters are better equipped to face a new ball, a swinging ball. Then your number 4s and 5s are more of your elegant stroke players, and your 6, 7, and 8 are your power hitters. For Mongolia, it's probably just 1 to 11 with ability. Well, the captain's in. He's in Burgan. Still the 2 slips. Gully. Point. Extra cover. 2 fielders outside of the power play behind that cordon. And wide to greet him. Yeah, again, bowlers. There's 3 slips in there. There's a gully. KCK is... you can see fast bowlers, they get a little bit greedy at times. They think, get it straight at those stumps, I'll have another one. He feels he has the ammunition, doesn't he? For sure. Oh, interested. Oh, might have been just drifting down. It'd be interesting to see that one again. It made a horrible sound on his boot. I think it was his boot. Yeah, drifting down leg. It's very, very full. I hope he's got some protection on that toe. They are just trainers, it's going to sting. Oh, I've seen batters in the past use sprinter spikes. That's got no protection. Oh, there you go. This time the stump does cartwheel behind. And it is an early departure for the captain. It's a duck. Oh, what a shame. Yeah, you almost feel... इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट कैसी हंसी मुस्कानों की धुन जिंदगी मक्खन फूलो ढक्कन डूबे डूबी डूब जिंदगी मक्खन पतली पतली delicious. You see Karen has his tail up. Oh, dug it out. Played that well. And I only think the challenge is going to get tougher. I think when Nepal do unleash their spinners, again, something they've never played against. You know, they've only, their whole attack was seam. So now they're going to get a ball coming out that once it hits the surface, it misbehaves, and that's going to be something completely fresh. And they're interested in that. Umpire is already
walking away from behind the stumps. Stolen the leg by. That's good. Switched on running. Yeah, again, just pushing down the leg side. Yeah, that one is missing. Not out. Sorry, leg. He's probably, I can imagine, will come off after this ball. Two over spell. Couple of wickets already. One made, one run only off the bat. Oh, shot. Got all of the bat behind that one. Good. First 2 overs from Kara. Just the one run off. Milk. It's honest, natural, pure, comforting, authentic, refreshing, and blends in like no other. A lot like us, no? Same pinch. Could it be the tiniest reminder, maybe, each time we savor it, to be more like it? Spreaders of goodness, that is. Just like milk. Can each one of us be more milk? We invite the world to do more good. Be more milk. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Gulshan Kumar Jha. बाजी करने के लिए 315 का विशाल लक्ष्य और 3 विकेट गंवा दिए हैं शुरू के 4 ओवर में मंगोलिया ने। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप 6 के 6 गेंद स्टंप की लाइन में डालेंगे तो 1 या 2 पर सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बल्लेबाजी की जो तकनीक है उस तकनीक में बहुत खामियां हैं। चार ओवर में 12 पर 3 है। उत्कुन बयार 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जमियान सुरेन को भी खाता खोलना बाकी है। इस बार बैट को नीचे लेकर आने में सफल हुए थे। थोड़ी सी हेजिटेशन देखने को मिल रही है, तीसरे अंपायर के पास भेजा है। डायरेक्ट हिट था, लेकिन ऐसा लगा पहले नजर में कि शायद उन्होंने क्रीज पे बल्ला रख दिया है। जी हां, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए तीसरे अंपायर को। फर्स्ट टाइम टच एंड गो का फैक्टर था, लेकिन पहले बल्ला नॉट आउट का निर्णय। जिस ढंग से आकर एरी ने 10 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली, नेपाल के लिए कमाल की पारी थी। और एक शूटिंग से अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा महिलाओं की, जिसमें भारत की आशी चौकसी, मानिनी कौशिक और सिफ्त कौर ने कुल मिलाकर 1764 अंक हासिल किए और इसके साथ ही शूटिंग में एक और पदक, सिल्वर मेडल दिला दिया है भारत को। तो शूटिंग टीम ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। आशी चौकसी, मानिनी कौशिक और सिफ्त कौर को बहुत बहुत बधाई सिल्वर मेडल जीतने के लिए। जो सोमपाल, करण और गुलशन की जो गति है, थोड़ी उससे भी दिक्कत हो रही है।
खुलकर प्रहार करने की जब भी कोशिश की है मंगोलियन बैटर्स ने, तब तक विकेट गंवाया है। मंगोलिया की जो महिला टीम थी वो ग्रुप मुकाबले में 15 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। कम से कम पुरुष टीम ने उतनी खराब शुरुआत तो नहीं की है। स्टंप को टारगेट किया है गुलशन ने, और यह अच्छी रणनीति है। यू मिस, आई हिट। अगर आप मिस करते हैं तो या तो क्लीन एलबीडब्ल्यू फंसेंगे या फिर बोल्ड होंगे। ओटकुन बयार और जामियन सुरेन बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला नहीं है मंगोलिया को बड़े मंचों पर खेलने का, और आईसीसी की कोशिश भी यही होती है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स में इन देशों को शामिल किया जाए। ये खराब गेंद थी, वार्निंग भी दी जा सकती है, नो बॉल तो होगी ही होगी। और फ्री हिट। हमने देखा था कि 29 अतिरिक्त रन आए थे जब नेपाल की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। 20 ओवर के मुकाबले में 29 अतिरिक्त रन आना, लगभग हर ओवर में 1.5 रन अतिरिक्त के आए हैं। और यहां पर गुलशन लाइन से भटके, बीमर थी ये, और नजरें बहुत जल्दी हटा ली थी बैटर्स ने। ये खतरनाक होता है बाउंसर या बीमर में। और इस बार ये पहला खूबसूरत शॉट खेला है ऑन साइड में। इस ओवर में एक गेंद बाकी है, चूंकि नो बॉल थी पिछली गेंद। जमियन सुरेन के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। घुटनों के बल बैठकर दर्शनीय शॉट था ये। थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा, और एक अलग शैली देखने को मिली है। बहुत दूर से बैटिंग करते हैं और स्लैप शॉट ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहे हैं मंगोलियन बैटर्स। पांच ओवर की समाप्ति, मंगोलिया 19 पर 3। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया।
और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, लो ढक्कन डूबे डूबी डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली पतली डिलिशियस। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। चीन के हांगझाओ में छोटे बच्चों से लेकर उनके अभिभावक तक सभी कुछ मुकाबलों को देखने आए हैं और ये विकेट गिरी थी। सोमपाल ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। उसके बाद करण ने 2 खिलाड़ियों को बोल्ड आउट किया। ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और उसके बाद एक पटकी हुई गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे, पूरी तरीके से विफल हुए और अंतिम विकेट फुल टॉस गेंद थी। मेटॉन के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन मेटॉन का खिलाड़ी काफी ऊपर खड़ा था इसी तरह की कैच करने के लिए सोमपाल। और चौथा झटका। खेल इस समय थोड़ी देर के लिए इसलिए रुका है क्योंकि मंगोलियन बैटर्स को पैर में थोड़े से क्रैम्प्स। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चीन में धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति भी रुझान बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि बल्लेबाज को जो थोड़ी परेशानी हुई थी, एक बार दोबारा बल्लेबाजी के लिए तैयार। अविनाश को पहले ओवर में सफलता मिली है। थोड़े से अपने लाइन से भटके जरूर। 2 वाइड गेंदे। कैचिंग पोजीशन पर 2 खिलाड़ी हैं इस समय। फुटवर्क के मामले में भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है मंगोलियाई बैटर्स ने। एक जगह से ही खेल रहे हैं। देखिए पैर बिल्कुल चिपके हुए, हिले ही नहीं। एकदम टारगेट पर मिडिल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं ब्लॉक होल में। अगर गेंद किसी भी तरीके से मिस होती है तो सीधा आउट होंगे। और रन बनाने का इरादा शायद मंगोलियाई बैटर्स ने त्याग दिया है। पहले विकेट बचानी है। एक लक्ष्य तय करके आए होंगे कि 20 ओवर की बल्लेबाजी करनी है, लेकिन नेपाल के अच्छे बैटर्स के आगे एक और डिफेंसिव शॉट। 6 ओवर के बाद मंगोलिया 21 पर 4। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। हर स्वाद में बसा, हर दाद में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। लोटाबायर 1 रन पर आकर खेल रहे हैं।
गुलशन ने भी बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन दिए हैं। इस पूरे मुकाबले की कहानी यही है, पहले मंगोलिया ने और अब उसके बाद नेपाल ने भी अतिरिक्त रन की झड़ी लगा दी है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। एक और वाइड बॉल और थोड़ा सा फंबल हुआ विकेट के पीछे। नेपाल को कम से कम इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी टीमें इस एशिया कप में हैं और कैसे इन टीमों के बीच अगर इतने ज्यादा अतिरिक्त रन देंगे तो बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बल्ला चला ही नहीं रहे हैं, फुटवर्क में किसी भी तरह के मूवमेंट ही देखने को नहीं मिल रही है। ना तो फ्रंट फुट पर जा रहे हैं, ना बैक फुट पर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक जगह पैर जमा लिए हैं। बल्ले का बाहरी किनारा और बहुत समय के बाद ये चौका आया है जामियान सुरेन के बल्ले से। शॉट खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस एक जगह खड़े होकर बल्ला अड़ा दे रहे हैं। ये देखिए, पैरों की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं। जो गेंद की गति है गुलशन की, उसका इस्तेमाल किया इस शॉट में। एसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें कि नेपाल ने बढ़िया प्रदर्शन किया था और वहां से एशिया कप का टिकट हासिल किया था, वहां गुलशन का बढ़िया प्रदर्शन रहा था। एक बार फिर यॉर्कर लेंथ की गेंद परेशान करके रखा है जामियान सुरेन को। बल्ला बहुत पहले गेंद की लाइन में ले आ रहे हैं। एक और अच्छी गेंद थी, किसी तरह सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश है यहां पर मंगोलिया के जामियान सुरेन की, या ज्यादातर बल्लेबाजों की बात करें तो कोई शॉट खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 खिलाड़ी गेंदबाज और विकेट कीपर को लेकर इस समय सर्कल के अंदर हैं। इस ओवर का ये तीसरा वाइड बॉल। अच्छी गेंद कर रहे हैं जब ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लेग स्टंप की तरफ जो भटक रहे हैं, इस पर जरूर चिंतन मनन करने की जरूरत होगी। $286 रन की जरूरत है 80 गेंदों पर, असंभव सा लक्ष्य। मंगोलिया अगर इस मुकाबले को देखेगा तो खासकर अब तक जो खेल हुआ है उसमें बहुत चीजें ठीक हो सकती थी। अगर आप कैचेस पकड़े होते तो शायद 300 के पार नेपाल की टीम नहीं जाती। अगर आपने मिसफील्ड नहीं किए होते तो कम से कम 30 रन तो आप बचा लिए होते। 7-8 ऐसी गेंदें थीं जो मिसफील्ड होकर चौके तक गई। सात ओवर की समाप्ति, मंगोलिया 29 पर 4। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है।
भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। The taste. Amul Light, the only thing it's rich in is taste. और अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ गए हैं सार्थक। सार्थक, स्वागत है आपका। और ये 5वां झटका लग गया है इस बीच मंगोलिया को। Number 9 out. LBW. 9号金球员挡杀 जिस तरह से ये मैच बना है, आप करीबी से देखते आए हैं, इस पर कमेंट्री करते हैं। आनंद, क्या लगता है आपको जब एक 300 से अधिक का लक्ष्य आप चेस डाउन करते हैं, मानसिक तौर पर कितनी मुश्किलें आप फेस करते हैं? इस पर बात करेंगे। 29 पर 5। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। एक तरफ विकेटों की झड़ी लगी है, दूसरी तरफ एक अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट महिलाओं में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर, एशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने 1759 अंक हासिल करके सोने का तमगा अपने नाम किया है। बहुत बहुत बधाई हो मनु भाकर, ईशा सिंह और सांगवान को। त्योहार का दिन शुरू हो रहा था, हम सभी को उम्मीदें थी 25 मीटर शूटिंग इवेंट से क्या कमाल कर दिया है तिकड़ी ने। एक और गोल्ड मेडल भारत गोल्ड मेडल भारत के नाम। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खेल प्रेमियों को यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सोने के तमगे भारत जीते, क्योंकि बॉक्सिंग में कई सारे गोल्ड की उम्मीद है, कुश्ती में उम्मीदें हैं, पुरुष क्रिकेट में भी हम गोल्ड मेडल के बड़े दावेदार हैं, शूटिंग के कुछ इवेंट्स अभी भी बाकी हैं। और आज जिस ढंग से हॉकी में हमने शुरुआत की है 15-0 और 16-1, वहां भी गोल्ड मेडल की संभावना बन रही है। आज महिला टीम अपने हॉकी मुकाबले में सिंगापुर का सामना करेगी। लेकिन इस मुकाबले की बात करें सार्थक, तो कुछ भी अच्छा नहीं घटा है मंगोलिया के नजरिए से। क्या आप आपके गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि जब आप इतना बड़ा The 8th over. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक। नो फ्रूट फ्रंट प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। चर्चा जारी। 315 का लक्ष्य मंगोलिया और छठे विकेट की तलाश में।
काफी बाहर जा रही थी वो गेंद, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे आनंद, क्या आपको लगता है कि गेंदबाजों में थोड़ी कमी दिखाई मंगोलिया ने, जिसकी वजह से अब बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया है? जी हाँ, ऐसे जगहों पर खेलने का अनुभव नहीं है मंगोलिया के पास। आईसीसी के इवेंट्स में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलते नहीं। दूसरी तरफ नेपाल की टीम है जो भी हाल में एशिया कप खेलकर आई है, भारत के साथ भी 200 से ज्यादा का टोटल उन्होंने बनाया था। बहुत खराब फील्डिंग हुई, मिसफील्ड बहुत ज्यादा हुई, ऐसे में बहुत बड़ा स्कोर बन गया। बढ़िया गेंदबाजी। और बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा आनंद, एशिया कप का जो अनुभव लेकर आती है और जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया उन्होंने वहां पर, वही काम आ रहा है आज नेपाल के लिए। और काफी कॉन्फिडेंस उनके हर पहलू में, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन। लेकिन एक चीज जो नेपाल के कप्तान इस मुकाबले में दुरुस्त करना चाहेंगे वो है अतिरिक्त रन। बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन दे रहे हैं, हर ओवर में औसतन 1 या 2 वाइड गेंदें जा रही हैं। और क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अगर आप इतने ज्यादा एक्स्ट्रास देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। मंगोलिया ने 29 अतिरिक्त रन दिए हैं 20 ओवर के मुकाबले में, और 30 में से 10 रन तो पक्के नेपाल ने भी खर्च कर दिए हैं एक्स्ट्रास में। उन एक्स्ट्रास के साथ साथ एक अच्छी बात ये दिख रही है कि जो लाइन एंड लेंथ पकड़ रहे हैं इन डिलीवरीज में, वो यॉर्कर की तलाश में आपको लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि उन्होंने भांप लिया है गुलशन ने कि बल्लेबाज शॉट की कोशिश नहीं कर रहा है, उसका जो मेन मोटिव है वो अपने विकेट को बचाना है, और वो सिर्फ विकेट के सामने बैट को लेकर आ रहे हैं, फुल फेस प्रेजेंट कर रहे हैं कि गेंद किसी भी तरफ विकेट पर ना लगे। जब ये स्ट्रैटेजी होती है तो बॉलर भी यही कोशिश करता है कि मैं तो सीधी गेंद फेंकूंगा, देखता है आप कितने समय तक रोक कर रखते हैं। जी, विकेट टू विकेट बॉलिंग एकदम बेसिक्स पर टिके हुए हैं यहाँ पर, और उसी के बीच वो अतिरिक्त रन जो आ रहे हैं, एक्स्ट्रास पर ध्यान देना। लेकिन ये यॉर्कर जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, और अब मंगोलिया के लिए सिर्फ अपने विकेट्स बचाकर रखना अहम। रन्स फिलहाल उस पर फोकस नहीं होगा क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं। पहले खुद की इनिंग्स संभालनी होगी, खुद को थोड़ा सा वहां पर समय ज्यादा दीजिए, क्योंकि अभी गेंदबाजी जिस तरह से चल रही है, मुश्किल कर रहे हैं सफर मंगोलियन बल्लेबाजों का ये नेपाली बॉलर्स। ये वाइड गेंद थी, लेग स्टंप को टारगेट करके गेंद डाली थी। ओवर की ये दूसरी वाइड बॉल। 315 के बाद जब लंच ब्रेक पर गए होंगे तो टीम मीटिंग में शायद एक ही बात हुई होगी सार्थक, कि छोड़ दीजिए, मैच जीतने की कोशिश तो बहुत दूर है, टारगेट ये सेट करते हैं कि पूरे 20 ओवर खेल कर आएंगे। कमाल का वो यॉर्कर एक और बार। अब देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट में मुश्किलें यहाँ पर नमसराय के लिए। खुद को बचाया, अगर वहां पे बल्ला बीच में नहीं आता तो गिलियां उड़ जाती। जी हाँ, ये दूसरे ऐसे मंगोलियन बैटर्स हैं जिनको क्रैम्प्स आ रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं जब कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलता है तब जाकर क्रैम्प्स आते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। शायद बहुत ज्यादा बल्लेबाजी का अब अनुभव है नहीं, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा चाइना में, बहुत बड़ा फैक्टर उन क्रैम्प्स के पीछे। आसान नहीं होता है इस तरह की ह्यूमिडिटी में खेलना। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, 32 पर 5। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ।
कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नेपाल के निशाने संदीप अब आए हैं गेंदबाजी करने। मंगोलिया के लिए बेहद जरूरी यहाँ पर टिके रहना। दोनों बल्लेबाजों को इनिंग संभालनी है। जिस तरह से आनंद कह रहे थे 20 ओवर तक आप खेल को लेके जाइए, यही बात हुई होगी ड्रेसिंग रूम में। समय दीजिए खुद को, सब्र रखिए। विकेट्स पर टिके रहने से मौके बनेंगे। हालांकि टोटल बेहद मुश्किल यहाँ पर मंगोलिया के लिए होने वाला है। और अगर आप विकेट्स बनाते हैं, आप खुद गर्व महसूस करेंगे कि आपने अंत तक खुद को जीवित रखा। बिल्कुल सही, लेकिन संदीप लमिछाने से कैसे निपटेंगे? पहली लेग स्पिन मिडिल स्टंप पर गेंद टप्पा खाकर ऑफ स्टंप की जा रही थी। चारों खाने चित कर दिया और मंगोलिया को लगा है ये छठा झटका। इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नो फ्रूट फ्रॉम प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। उल्ट किया था। और संदीप लमिछाने के बारे में हमारे क्रिकेट प्रेमी जानते ही होंगे। वो नेपाल के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जो दुनिया के अलग अलग T20 लीग्स में जाकर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में भी उन्होंने अपना दमखम दिखाया था। इंग्लैंड की वाइटलिटी T20 ब्लास्ट में भी वो खेलते नजर आए। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें या फिर लंका प्रीमियर लीग की बात करें, उन्होंने नेपाल को वैश्विक स्टेज पर क्रिकेट में पहचान दिलाने का काम किया है। ऐतिहासिक दिन रहा ये नेपाल के लिए। अगर बात करें दीपेंद्र सिंह के लिए, जिन्हें टाइगर बुलाया जाता है नेपाल में, 50 आज 9 बॉल में। और यहाँ अपील, एक और विकेट। माफ कीजिएगा, ये रिपीट हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी दिखी है उसी के साथ साथ वो जो 50 का मैं जिक्र कर रहा था, सिर्फ 9 बॉल में। आनंद, आप कमेंट्री कर रहे थे, आप सोच सकते थे ऐसा एक रिकॉर्ड बनेगा? शुरू के 6 बॉलों पर 6 छक्के जड़े थे उन्होंने, दीपेंद्र सिंह गैरी ने। और उसके बाद 2 रन लिया और उसके बाद फिर 2 छक्के। तो छक्कों की झड़ी लगा दी थी। एक समय 6 गेंदों के बाद 600 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे वो। उन्हीं के साथ साथ कुशल मला ने एक शतक आज अपने नाम किया 34 गेंदों में। और अब उसके ऊपर आप देख लीजिए ये गेंदबाजी। आपके बल्लेबाज इतने जबरदस्त, फिर गेंदबाज भी एक अलग कॉन्फिडेंस के आते हैं, क्योंकि इसके साथ आते हैं लक्ष्य इतना बड़ा है। तो आपने काम अधिकतर कर दिया था अपने बल्लेबाजों के जरिए। काफी मुश्किल महसूस कर रहे हैं तकनीकी तौर पर मंगोलिया के जो बल्लेबाज हैं। तकनीक में आप साफ साफ वो कमी देख पा रहे हैं। फुटवर्क नहीं चल रहा है। और लेग स्पिनर को अगर आप रिलीज के पॉइंट पर रीड नहीं करेंगे तो फिर आप अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। 2 स्लिप रखा है, ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। और इस समय संदीप लमिछाने को पता है कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बेसिक्स पर ध्यान देना है। बल्ले का बाहरी किनारा लगा। अच्छी बात रही कि जो 2 स्लिप्स खड़े हैं उनके हाथों में गेंद नहीं गई। इन मंगोलियन खिलाड़ियों की उम्र भी कम है सार्थक, ऐसे में थोड़ा सा दबाव ज्यादा उनके ऊपर बढ़ गया है। 315 का दबाव तो है ही, खासकर ऐसा भी लग रहा है कि खुद को बचाने की भी कोशिश में लगे हैं।
दिलचस्पी से नेपाल आज ऐसी पहली टीम बनी है जिन्होंने 300 से अधिक रन बनाए हैं T20 क्रिकेट में। इसके पहले ये रिकॉर्ड था अफगानिस्तान के नाम। अफगानिस्तान ने 278 बनाए थे आयरलैंड के सामने। वो रिकॉर्ड आज टूटा है 19वें एशियन गेम्स में। और नेपाल के कुछ बैटर्स तो ड्रेसिंग रूम से ही ये सोच कर आए थे और ये कॉटन बोल्ड होते होते बचे। अंतिम गेंद पर कैच छूटा। 10 ओवर की समाप्ति, मंगोलिया 32 पर 6। Milk. It's honest, natural, pure, comforting, authentic, refreshing, and blends in like no other. A lot like us, no? Same pinch. Could it be the tiniest reminder maybe, each time we savor it, to be more like it? Spreaders of goodness, that is. Just like milk. Can each one of us be more milk? We invite the world to do more good. Be more milk. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। मंगोलिया बनाम नेपाल, ऐतिहासिक दिन नेपाल के लिए। अब गेंदबाज लगे हुए हैं इस मैच को नेपाल के नाम करने के लिए। सिर्फ 4 विकेट रह गए हैं मंगोलिया के तरफ से। एक ही लक्ष्य होगा, अंत तक बने रहना, किसी ना किसी तरह खुद को जीवित रखना, और वो करने में बेहद मुश्किल है उनके लिए। मंगोलिया की महिला टीम इसी टूर्नामेंट में 15 पर ऑल आउट हो चुकी है। कम से कम पुरुष टीम ने उससे 2 गुने रन तो बना लिए हैं। और यही दीपेंद्र सिंह एरी हैं जिनकी बात कर रहे थे सार्थक आप, जिन्होंने 9 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, 10 गेंद पर 52 रन बनाए। और ये बोल्ड टिप्पा खाने के बाद गेंद स्पिन होकर अंदर आई, लेग स्पिन की, ऑफ स्पिन की शैली में, और ये मंगोलिया। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। एक जबरदस्त मैच में एक और विकेट यहां पर। जी हां, हैट्रिक बनते हुए हैट्रिक हो गया है। Batter number 11. फिलहाल Bold. 7号击球员被投杀出。 फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
आज नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने युवराज सिंह भारत के सुपरस्टार का भी रिकॉर्ड तोड़ा। 6 लगातार छक्के, हालांकि एक ओवर में 5 आए और फिर अगले ही ओवर में छठा छक्का उन्होंने अपने नाम किया। नेपाल के लिए यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक आनंद। जी हाँ, रिकॉर्ड बुक पे कई सारे कीर्तिमान दर्ज कराने ही उनके बल्लेबाज उतरे थे। संदीप लमिछाने, मजा आ रहा है उन्हें यहाँ पर गेंदबाजी करने में, और इस बार थोड़ी सी बाउंस ने बल्लेबाज का साथ दे दिया, नहीं तो गिल्लियां बिखेरने का पूरा प्रबंध कर लिया था इस गेंद पर। पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी गुगली को। खेलना ऑफ साइड में चाहते हैं, गेंद इनसाइड एज लगकर लेग साइड पर जा रही है। क्लूलेस नजर आ रहे हैं मंगोलियन बैटर सार्थक। काफी कुछ सीखने का मौका जरूर, जब आप कामयाबी हासिल करते हैं आप उस जीत से काफी खुश होते हैं, लेकिन हार जो आपको सिखाती है, फेलियर से जो आप सीखते हैं, वही युवराज सिंह जिसका मैं जिक्र कर रहा था। स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने उन्होंने 6 छक्के मारे थे और उसके बाद जो स्टुअर्ट ब्रॉड दुनिया में नजर आए गेंदबाज के तौर पर, तो मंगोलिया को आज बहुत परेशानी होगी, निराशा होगी, दर्द होगा, लेकिन मंगोलियन सपोर्टर समर्थक को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक बड़ा मौका मिला उन्हें एशियन गेम्स में प्रदर्शन करने का और वापस आ सकते हैं काफी कुछ सीखकर, सुधार लाकर। जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि श्रीलंका की टीम ने भी इसी ढंग से शुरुआत की थी। उसके बाद 1996 के विश्व विजेता बने अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में। जिम्बाब्वे का भी एक ऐसा ही दौर था जब किसी भी टीम को लगता था कि वो जिम्बाब्वे को हरा देंगी। विश्व कप में भारत को हराया 1999 के विश्व कप में। उसके बाद बांग्लादेश ने जब शुरुआत की तब उनके साथ भी यही स्थिति थी। 12 के बाद मंगोलिया 40 पर 8। इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। स्पिन को रीड करने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं यहाँ पर मंगोलियन बल्लेबाज मुनबक। फिलहाल तुमुरुस, दोनों के तरफ से वो तकनीकी जो समस्या दिख रही है साफ तौर पे, उसका ये भी कारण है कि उतना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला नहीं है, इस तरह के बड़े मंच पर खेले नहीं है ये बल्लेबाज। पर ये मंगोलियन समर्थकों के लिए अच्छी बात है कि आज जब ये मैच की फुटेज आप दोबारा भी देखेंगे, आप काफी काम कर सकते हैं अपने कोचेस के साथ, अपने टीम के साथ बारीकियों पर काम करना होगा। जी हाँ, अगर क्रिकेट में अगले 10 सालों में आपको बढ़िया करना है तो ग्रास रूट लेवल पर प्लान बनाना पड़ेगा, उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करने होंगे। कुछ अच्छे क्रिकेट अकेडमीज में काम करने की जरूरत है, अच्छे प्रशिक्षकों की देखरेख में युवा प्रतिभाओं को तराशना होगा, तब जाकर आप 5 से 10 वर्षों के बीच एक ऐसी टीम खड़ी करने की सोच सकते हैं जो मुकाबला दे, टक्कर दे। यहाँ पर फंबल हुआ है और रन आउट होंगे, पैर फिसला था। 9वां विकेट यहाँ पर गिरता हुआ मंगोलिया का। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा।
एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। बहुत बड़ा दिन ये नेपाल के लिए। एकदम ही खास प्रदर्शन बल्लेबाजों द्वारा। उसके बाद साथ निभा रहे हैं उनका गेंदबाज। यहाँ पर गलती विकेट कीपर के हाथों में थी गेंद, स्टंपिंग का मौका छूटा और इस तरह से बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैं। और इसी के साथ जीत नेपाल के नाम। एक ऐसा दिन जो नेपाल के सभी चाहने वाले कभी नहीं भूलेंगे। इतिहास रच दिया है, पहले बल्लेबाजों के जरिए और अब एक शानदार प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। एक और कीर्तिमान, सबसे बड़े अंतर से जीत। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, चॉकलेट राजभोग ड्राई फ्रूट्स मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क रियल आइसक्रीम। 女士们、先生们，上午的比赛已经全部结束，感谢您的观看。下午的比赛将于2点进行，希望您持续关注。It's in there as well, skittled out for 41. 23 of those were extras. Yeah, you're right. That's too many. Nepal going to be analytical of their own performance. It's that extras column that they'll look to work on. Their opening bowlers seem to bowl with a decent स्पोर्ट्स नेटवर्कको यो भिडियोमा हेर्नु भएकोमा यहाँ सबैलाई धन्यवाद। नेपालले bowled a single delivery to get that final wicket. Lamachani is going to be a handful on these surfaces. Thought that Jar went for 18 in his 3, going at 6 and over. He will look at that and feel that he hasn't quite hit his straps and needs some work to do. So that's the tail, a very one-sided tail as well. 314 against 41, 273 is the winning total. It is an absolute landslide, and in a day of records, that might also be a record, but we'll have to go back and have a little look through the archives. Well, that would most certainly be a record, considering that 273 was the highest score ever scored in a T20 international. So I would think that a win by 273 runs is yet another record to Nepal. Very impressive in their opening game of the group stage. They will go to the